Okay, this morning I take the passage from the Bible for today's meditation is 1 John chapter 4 from verses 7 to 11. और मैं आज सुबह के इस मेरे प्रचार में पहला यूहन्ना को मैं बोलूंगा उसमें, और उसका चौथा अध्याय और उसका 7वां वचन। So we have just entered the month of February. और हम लोग अभी फरवरी के इस माह में हम लोग केवल अभी आए ही हैं। In the month of February there is an event called Valentine's Day. और ये जो महीना है उसमें वैलेंटाइन डे भी होता है, And many of the young people they celebrate और जो नौजवान लोग जो है उसको मनाते भी हैं, celebration of love. और वो मनाते हैं जो प्यार का पर्व। They do not know the history behind it. लेकिन उसको इनका इतिहास नहीं पता इसके पीछे क्या है। Everybody is celebrating, they are also celebrating. सभी लोग इसको मनाते हैं, इसलिए वो भी मनाते हैं। Saint Valentine was a Christian priest. और वैलेंटाइन जो तो एक मसीह में वो एक प्रीस्ट थे During the time of Claudius II in 3rd century. Claudius II in 3rd century. और क्लॉडियस जो थे वो 3rd सेंचुरी में जब वो थे, So Claudius wanted his soldiers to be focusing on their work. और जो क्लॉडियस जो राजा थे वो चाहते थे उनके जो सेना थे वो अपने काम में एकदम निपुण रहे। So Claudius didn't want the soldiers to get married so that they should not be going to the family, spending time, so that they will be focusing only on war. क्लॉडियस नहीं चाहता कि उनके कोई भी सैनिक शादी करे ताकि या अपने घर बार वापस उसमें जाए, लेकिन जो अपना जो काम है उसमें पूरी तरह से फोकस करते रहें। But Saint Valentine, and he was a priest, and he used to secretly and getting the young people getting married. और जो वैलेंटाइन थे वो एक याजक थे, और वो एक गुप्त रूप से वो सैनिकों को बोलते थे कि शादी करो। That was against the law of the land. और वो जो कानून था वो उसके विरुद्ध था पूरा। And he was also involved in act of kindness and also the good work. और हालांकि वो अच्छे अच्छे कामों में भी वो व्यस्त थे, वो काम कर रहे थे। And because he was getting the young people getting married in a Christian marriage, और हालांकि क्योंकि वो जो जवान लोगों को वो क्रिस्ती मसीह में वो शादी करवा रहे थे, and he was imprisoned, he was put in the jail, और उनको कारागृह में डाल दिया गया था, and finally he was killed. और उसके बाद अंत में उनको मार दिया He गया। was executed on the 14th of February. और उनको जो मारा गया जो दिन था वो 14 फरवरी था। So that is the day that people celebrate in the memory of Saint Valentine. और इसीलिए सभी लोग पूरा दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। So he was getting young people married, and also he was doing acts of kindness, all those good work because he was a Christian. और हालांकि वो जवानों को वो शादी करवा रहे थे और वो अच्छा काम कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मसीह में थे। This morning we will see from this passage, so what is the reality of love? और हम देखेंगे ये जो प्रेम का सच्चाई क्या है। Can someone read in Hindi? Chapter 4, verse 7 to 11. और कोई हिंदी में उसको पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 7वां वचन। This passage starts with saying, "Beloved, let us love one another." और इसमें जो 7वां वचन में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। So what is this love? Everyone is talking about love. What is this love? What is the definition of love? और ये सवाल, ये जो सब लोग बोल रहे हैं प्रेम के बारे में, लेकिन प्रेम है क्या? So the definition is, the love is a profound, tender, passionate affection for another person. और जो प्रेम है वो बहुत ही एक नाजुक और दूसरों के लिए जो प्रीति रखते हैं वो है प्रेम। So the word love is not particularly speaking about in terms of noun, but it is a verb. It's an action. और ये जो प्रेम है वो नाउन नहीं है, लेकिन ये वर्ब है, वो एक चीज को दर्शाता है। So there is a movie there's a movie called Fiddler on the Roof. और एक मूवी का नाम था Fiddler on the Roof. फिडलर ऑन द रूफ करके मूवी का नाम था। So I know we don't see movies here. मैं जानता हूँ कि आप में से कोई मूवी नहीं देखता। So I like this because it was a Jewish culture, a Jewish family, and marriage involved
and it's a Christian family. और ये जो 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 मूवी थी वो एक यहूदी परिवार के बारे में था, उनके कल्चर के बारे में था, उनकी संस्कृति के बारे में था, और एक ऐसा एक मूवी था ये। So 25 years of marriage, the man called Lavia, and he comes and asks his wife Golda, Golda, do you love me? और 25 साल के बाद लविया जो पति अपनी पत्नी से गोल्डिया से कहते कि क्या तुमसे प्रेम करते, क्या 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 तुम मुझसे प्रेम करते हो? He asked her, do you what? उन्होंने पत्नी ने क्या बोला आपने? Do you love me? कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? She said, you are a fool. कि तुम एक मूर्ख हो। And he said, I know. वो उसने कहा कि मैं जानता हूँ। But do you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? And she replied, और फिर उन्होंने ऐसे कहा, for 25 years I washed your clothes, और मैं 25 साल से मैं तुम्हारे कपड़ों को धो रही हूँ, cooked your meals, और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया, cleaned your house, और तुम्हारे घर को साफ किया, given you children, तुम्हें बच्चे दिए, milked your cow. और तुम्हारे जो गाय को मैंने दूध पिलाया। If this is not love, what is? और ये नहीं, ये प्रेम नहीं तो और क्या है? This is not answered this way, but they are singing actually. It is a musical movie. और ये केवल एक गीत के अनुसार इस बात को दर्शा रहे हैं। So, what is it? The love is actually action. It is not a noun. और ये जो प्रेम है वो केवल ऐसी अंदरी भावना नहीं है, लेकिन उसको दर्शाना है। So we will say that I love my wife. कि कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, I love my children, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, and I love your car. और I love your car. मैं तुम्हारे कार से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, I love pizza. और मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। Now see, if I have to love my wife, अगर मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूँ I have to spend time with her. और मुझे समय भी तो बिताना है, Okay? So I also love pizza. और हाँ, लेकिन मुझे पिज्जा भी बहुत पसंद But है। what do? I go to a store and buy pizza. और मैं क्या करता हूँ, मैं वहां जाके पिज्जा को मैं खरीद लेता हूँ, I eat the pizza, और मैं वो पिज्जा को मैं खाता हूँ, and then the wrapping I put it together and put in the dustbin. और उसके बाद जो उसका जो रैप है उसको मैं कूड़ेदान में डाल देता हूँ। I don't care what happens to what I put in the dustbin. और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने कूड़ेदान में मैंने क्या डाला I है, enjoyed pizza. That's all it matters. लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने पिज्जा को खाया, मुझे कोई काफी है। So for everything we say love. और सबके लिए हम कहते हैं प्रेम। So I love my wife, I love my children, I love your car, and I love pizza. Same word. और मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं पिज्जा से प्रेम करता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, और मैं तुम्हारे कार से भी प्रेम करता हूँ। But when it comes to Greek language, they have different words to express, to communicate what's love. और यूनानी भाषा में अगर हमें बताना या दर्शाना है, उसका अलग ही मतलब है। And the first one is the Greek word is called eros. Eros. और जो यूनानी की जो पहला, ये जो भाषा का जो प्रेम का जो पहला जो शब्द है वो है इरोस, Which means that it is an erotic love or it's a selfish love. और ये एक ऐसा प्रेम दर्शाता है वो जो मतलबी जो प्रेम है, Or it is a use and throw pizza love. और या तो हम बोल सकते हैं पिज्जा लाओ क्योंकि उसको इस्तेमाल करो फिर फेंक दो, That's eros. और उसको इरोस बोलते The हैं। second one is phileo. और दूसरा जो शब्द है फिलायो, That means a friendship love. और इसका ये मतलब है कि मित्रता का जो प्रेम है, Give and take. Give and take. और लेके और देना, लेना देना। So I invited you to my house for a meal. और मैंने तुम्हें मेरे घर पे मैंने न्योता दिया खाना खाने के लिए, So I will invite you also to my house. और मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा मेरे So घर it's a पे। give and take. It's a good one. और अच्छी बात है, लेना और देना अच्छी बात है ये। Now the third one is called the storge love. Storge. स्टुअर गेल है तीसरी बात जो है, These are all the Greek words. Storge love. और ये स्टुअर गेला है, ये यूनानी भाषा है ये। So that is parental love. और ये जो है माता पिता का प्रेम को दर्शाने का एक जरिया है। Parents love their children. और जो माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं Give the best to the children और सबसे उत्तम अपने बच्चों को देते so हैं, that they will become best in their life. ताकि वो अपने जीवन में सबसे उत्तम बन जाएं। But still there is an expectation that when they grow up, they will look after us. लेकिन एक चीज माता पिता ये भी समझते हैं, सोचते हैं कि जब वो बड़े होंगे वो हमारा भी ख्याल रखना चाहिए। So all those, the blessings and loving is a kind of investment, expecting a return on that investment. हम ये सोचते हैं कि जो भी मेरा जो रिश्ता है प्रेम का, एक छोटा सा निवेश है ताकि मुझे उसकी जो भरपूरी वापस मुझे मिल जाए। So the eros, इरोस so then phileo और फिलायो है उसके बाद, and storge. और स्टोर्गे है उसके बाद। These three are not the love what we have just read in the Bible.
लेकिन ये तीनों जो चीज है वो प्रेम नहीं है जो हमने पवित्र शास्त्र में भी पढ़ा। So there is another love there is another word in Greek that is called agape. और यूनानी भाषा में और एक और शब्द है प्रेम के, और उसको लिखा है अगापे। Many of us know about that. और सभी हम में से काफी लोग इस बात को जानते That हैं। is called the divine love. और वो जो है एक अलौकिक एक प्रेम है, It is God's love. और क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है, And He loved us because He wanted to love us. परमेश्वर ने हमसे इसीलिए प्रेम किया क्योंकि वो चाहते थे हमसे प्रेम करने It के is लिए। not on the basis of what we did or we did not do. और ये इसमें कोई मतलब नहीं कि हमने क्या किया उसकी वजह से It नहीं, is purely on the basis of His nature. और ये केवल उन्होंने प्रेम इसलिए दर्शाया क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, That is divine love. और यही एक डिवाइन प्रेम है। So that is 100% giving, और ये जो 100% जो देना है 0% expectation. और 0% जो है 0% उससे लेने का कोई आप मन करते हैं, That is God's love. और ये परमेश्वर का प्रेम है। So we find that when Jesus came here on earth, और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, He began speaking to us in parables. और फिर यीशु मसीह जो दृष्टांत में हमसे बात करना शुरू किए, That is, that He is bringing the spiritual truth, और इसका ये मतलब है वो एक आत्मिक सच्चाई को वो तैयार कर रहे हैं, connecting with the natural things that we can understand. और जो हमारे जो शारीरिक या स्वाभाविक जो हमारे स्वभाव है उससे वो जुड़ाना चाहते थे। So He said, a certain man had 2 sons. और कहा है कि एक व्यक्ति का 2 बच्चे थे, एक पिता का 2 बच्चे थे, And the younger one said, और जो छोटा जो बेटा ने ऐसे कहा, Father, give me my share. और कहा कि जो मेरा है पिताजी मुझे दे दो। And then the father, and because he kept asking, and the father gave him his share. और क्योंकि ये लड़का जो था बार बार पूछ रहा था पिताजी से, तो पिताजी ने उसको दे दिए जो उसका हक था। We all know the story, prodigal son. और हम सब जानते हैं उकाव के पुत्र का ये जो कहानी सब लोग जानते हैं। And he took all his share, और उसने अपना पूरा जो शेयर वो लेके गया, and he went to a far away country. और वो एक दूसरा एक देश में चला गया इस सब पैसे को लेके। And there he led a very riotous living. और फिर वो वहां पे एक अलग जिंदगी वो बिताना शुरू किया। He's saying that he led a prodigal living. और वहां पे लिखा है एक उड़ाव के पुत्र जैसे उसने अपना जिंदगी को That बिताया। is why the story is a parable is a prodigal son. और इसीलिए जो उड़ाव पुत्र है उसके बारे में उसके इस कहानी को दर्शाया है। Everything got over, all possessions got over, और उसके पास जो पैसे थे सब कुछ खत्म हो गए, all the friends also disappeared. और उसके जो मित्र जो दोस्त लोग थे सभी लोग चले गए, He was in need, और उसको जरूरत में वो आ गया। and in the land there was a famine. और जिस भूमि में वो रह रहा था वहां पे सूखापन आ गया, Nobody was giving him anything to eat. और कोई भी किसी को भी खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा And था। finally he got hired himself to a place of feeding the pig. और फिर वो अपने आप को एक ऐसे जगह पे उसने अपने आप को हायर करवाया जहां पे सुअरों को उनको खाना देना था। So he was eating the food that is falling. और वो ऐसा खाना खा रहा था जहां पे जो सुअर को जो खाना दिया जाता वो चीज को उठा के खा रहा था। As he was sitting there, जैसे वहां पे वो बैठा हुआ था, and the thought came to his mind, और फिर परमेश्वर उसके मन में आया in my father's house, कि मेरे पिता के घर में how many of the servants? कितने नौकर चाकर हैं, They have enough and more to spare. और लिखा है कि वहां पे ज्यादा भी जितना जरूरत है उससे ज्यादा है। Here I am in this field. Here I am in this field. और जैसे मैं इस क्षेत्र में हूं अभी, The pig and I are eating. और मैं और जो सुअर है हम लोग दोनों खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। Therefore he decided, I will get up from this place. और फिर उसने निर्णय किया कि मैं इस जगह से उठ जाऊंगा I'll go back to my father. और मैं अपने पिताजी के पास वापस चले जाऊंगा। And he did it. और उसने वैसे ही किया, And he got up from that place. He went back to his father. और वो उस जगह से उठा और अपने पिता के घर पे वापस गया। And the father is the first one to see him. और पिताजी जो थे उसके पहला व्यक्ति था जिसने उसको बेटे को देखा। People may have seen him, but saying that the father is the first one to recognize him. और हालांकि लोगों ने तो देखा होगा, लेकिन पिता थे उसने अपने बेटे को पहचान लिया था, That was his condition then. क्योंकि उसका जो कंडीशन था बहुत ही बुरा था। What did the father do? पिता ने क्या किया? Did he scold him? You took all the money. You took all the possessions. Did he say that? Did the father say that you took all your shares? Why did you come back here? क्या पिताजी ने ऐसे कहा कि जो तुझे चाहिए था मैंने सब कुछ दिया, तो तुम वापस क्यों आए हो अभी मेरे पास? He read not that way. उसने ऐसे नहीं कहा। But in Jesus' parable, when he was saying, जब यीशु मसीह के इस दृष्टांत को हम देखते हैं, the father put his arm around his shoulder.
लिखा है कि पिता ने अपने जो बाहों को उसके बेटे के ऊपर लगाया kissed him, और उसको चूमा दिया ordered the servants to, change him and then have a celebration. और फिर अपने जो सेवकों को पिताजी ने कहा कि इसके कपड़े उतारो और बहुत बड़ा हम जश्न मनाएंगे And he was accepted there, और उसको वहां पे पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया and he was loved by the father. और जो लड़का था उसका बेटा था पिता ने उसको पूरी तरह से प्रेम किया बेटे So we को। all know that story. हम सभी लोग इस कहानी को जानते हैं So the question to you now और ये सवाल आपके लिए ये है अभी is that when did the father start loving the son? और ये सवाल ये है कि कब पिता ने पुत्र से प्रेम करना शुरू किया। Can you think about that? क्या Was उसके- was it at the time he came to a realization, क्या ये वो वक्त है कि पिता को कि जब बेटे को महसूस हुआ है कि वो गलत है or when he came back home and met his father? और या तो वो बेटे को लगा कि मुझे घर पे जाना और मुझे पिताजी से मिलना है। What do you think? आप क्या सोचते हैं? Yeah, I couldn't hear. Yes. मैं सुन नहीं सकता हूँ Sorry. Yeah. All right. Okay. So I said two options. और मैं कहता हूँ दो ऑप्शन है, No, three options. थ्री ऑप्शंस The है। first one is it at the time that he came to realization पहला मैं सवाल पूछा क्या ये that जब he has sinned? That's a time of repentance. क्या ये मैं ये बोलना चाहता हूँ क्या बेटे को जब महसूस हुआ है कि मैंने गलत किया मैंने पाप किया है He repented. और उसने पश्चाताप किया Or when he reached the father and father met him and began loving him. और दूसरी बात है कि जब वो पिता के घर पे वापस आया और पिताजी ने उसको गले लगाया Or any other time. और यह तीसरा और कोई समय। Think about this. At the time he was repenting, or the time he reached home. He was born in the womb. Okay. Then you have gone beyond that. That's right. You know what is the father loved him all along throughout his life, and he was so happy that his son was born. आपको पता है कि जब पिता ने उस बेटे को पूरी जिंदगी भर प्रेम किया क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था उसने कहा कि ये मेरा बेटा पैदा हुआ है। So you know why Jesus said this parable? आपको पता है कि यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा इस पैराबल में? To say how the father loves us, for us to understand. और क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया इस बात को जानने के लिए Father has loved us even before we were born. और स्वर्ग के पिता ने हमसे प्रेम किया हमारा जन्म से भी पहले Before you could do any good thing, और आप एक अच्छा चीज करने से पहले भी God loved us. कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया Before you could do any wrong thing, और आप कुछ गलत काम करने से पहले God loved us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Even when you are doing a good thing, God loves us. हालांकि आप अच्छे काम कर रहे हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Even when you are doing the wrong thing, still God loves us. हालांकि आप बुरा काम करते हैं फिर भी आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। You know, God is, we talk about the profound, tender, passionate love. और क्योंकि ये जो प्रेम है बहुत ही नाजुक है लेकिन बहुत प्रभावशाली है और उसके अंदर बहुत कुछ है। God's love is more than what we can understand. और जो परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे समझ से भी विपरीत है वो। It doesn't come by reading a book. और ये केवल किताबों को पढ़ने से नहीं होता It comes by a revelation of God. और ये जो है प्रकाशित इस बातों को दर्शाता है उसके बारे में। The only person who knows about God's love is the one who came from heaven. और परमेश्वर के उस प्रेम को केवल वही समझ सकता है जो परमेश्वर की ओर से आया है। After the ascension of Jesus, it's the Holy Spirit that is with us. और यीशु मसीह के प्रभु स्वर्ग में जाने के बाद जो पवित्र आत्मा है उसके बारे में है It is the Holy Spirit who will reveal the Father's love to और us. केवल पवित्र आत्मा इस बात को परमेश्वर के उस प्रेम को दर्शाएगा हमारे बीच में। The very fact that we are all here in this room now और ये जो सच्चाई है कि आप सभी लोग हम इस रूम में बैठे हैं is because somewhere in our love, in our life, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में the Holy Spirit has revealed to us about the love of the Father. क्योंकि कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा ने हमें पिता के उस प्रेम को दिखाया है दर्शाया है। God loves us more than what we can understand. और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे समझ से भी बहुत बढ़कर है वो। You know what is Paul saying in Romans? In Romans chapter 8 verse 38 and 39. और रोमियो के चैप्टर 8 का वर्स 38 और 39 में लिखा है। So I'm looking for the person who is operating the, you are sitting there, right? और मैं Somewhere there, I think. Oh, there you are. Okay, there you are. Okay. Romans chapter 8, verse 38 and 39. It says that, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers,
nor things present, nor things to come, nor heights, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। It says that God chose us before the foundation of the world. लिखा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि के नींव से पहले हमें चुन लिया था। We can see the stars and galaxies and also the whole universe in a macro level. और हम देख सकते हैं कि जो चंद्रमा है, तारा है और ये पूरे बनाया है परमेश्वर ने, उसके बारे में। Even micro level, even before an atom came into existence. और माइक्रो लेवल में अगर देखेंगे, अगर एटम का भी आने से पहले ही, When there was nothing except God Himself. केवल उससे पहले कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर ही थे। And He began loving us from that time onwards. और उस वक्त से परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना शुरू किया। How is it possible? ये कैसे संभव हो सकता है? Because He saw us. क्योंकि उसने हमें देखा था। Maybe perhaps He is seeing us sitting here now. और शायद परमेश्वर अभी भी हमें देख रहे, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे। When you took bath this morning, you may not have known how many hair has fallen off. When you took bath in the morning, how many hair fallen off, you don't know. शायद इस सुबह आपने जब स्नान You may किया not know. होगा, आपके सर से कितने बाल निकले शायद आपको भी पता नहीं होगा। But the Bible is saying He numbered your hair. और लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपके बालों को भी परमेश्वर ने गिनती रखा है। It's the knowledge about us. आप सोचिए, इतना बड़ा नॉलेज परमेश्वर हमारे बारे में रखता है। How much in detail that He loves us. आप सोचिए कितना गंभीर रूप से परमेश्वर हमें वो जानता है। When He knows us that detail, does He not know our wrong intentions and wrongdoings? अगर वो इतना गहराई से जानता है, क्या हमारे अच्छाई और बुराई का इस समझ को नहीं समझता परमेश्वर? He knows. वो जानते हैं। Does He love us? क्या वो हमसे प्रेम करते हैं? He still loves us. वो हमसे अभी भी प्रेम करते हैं। Now look at the universe. There are billions of galaxies and billions of stars within the galaxies. But you know what? The Bible is saying God calls them by name. आप सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, अनगिनत तारे हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हर तारों को परमेश्वर ने नाम से पुकारा है। So that great is our God. और उतना महान परमेश्वर है हमारा। You know what I said? If you don't get sleep in the night, you will be thinking, right? Something. Think about this. आप सोचिए, अगर आप सो रहे हैं और आपको सोने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इसके बारे में जरा सोचिए। Think about God. आप परमेश्वर के बारे में सोचिए। It will amaze you. वो आपको एकदम अमेज कर देंगे वो, Because His love is too great. क्योंकि उनका प्रेम इतना अपार है। Now, when I was young, maybe about 12, 13 years old, और जब मैं एक जवान लड़का था, मैं करीबन शायद 12 या 13 वर्ष का था, one of my hobbies is just going up on the mango tree and sitting there and think. और मेरा एक बहुत बड़ा मुझे अच्छा लगता था कि जो आम के पेड़ के ऊपर बैठ के कुछ सोचना। So one of the thought was that I can understand that God created the whole universe और मैं ये सोचता कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड का तो सृष्टि किया है, because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। But what I don't understand at that time, the question was, why that such a great God came to be like a man? और फिर मैं ये सोच रहा था कि इतना महान परमेश्वर एक मनुष्य रूप में क्यों आया? It is beyond our comprehension. और मेरे समझ से एकदम दूर है ये बात। Beyond our comprehension means we just cannot understand. मैं इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे समझ के बहुत बाहर है ये। So when our heart is really desiring to know Him, the Holy Spirit will help us to understand Him. और जब हमारा हृदय संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढने की कोशिश करता है, Someone said that, the greatest things in all my life is to know Him. और किसी ने ऐसे कहा कि सबसे महान जो चीज मेरे जीवन में केवल प्रभु को जानना है। If there is anyone who has seen God, अगर किसी ने परमेश्वर को देखा है, it was Moses. केवल मूसा ने देखा था। And he has seen every day for 40 years in the wilderness that how God was making him the leader to lead one country. और प्रतिदिन मूसा ने परमेश्वर को देखा और उसने कैसे मूसा को अगवा बनाया ताकि पूरे एक राष्ट्र की वो अगवा कर सके। And all the miracles were done through his hand because God was speaking to him on a daily और basis. चिन्ह और चमत्कार मूसा के हाथ के द्वारा हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसको प्रतिदिन उनसे बात करते थे। But when he prayed, what's the prayer that he did? When he prayed, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, do you know what is the prayer that he did? आपको पता है उन्होंने क्या प्रार्थना किया? He said one thing, उन्होंने कहा कि एक चीज, I want to know you. कि मैं तुझे जानना चाहता हूं Out of परमेश्वर। all the things that he knew, the one thing that he wanted to know was, I want to know you.
हालांकि वो सब जानते थे, लेकिन मूसा ने कहा कि मैं तुझे जानना चाहता हूं परमेश्वर। You know, that is what is our main thing of our life. और यही सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे भी जीवन का, Knowing God. कि परमेश्वर को जानना। So God has come to us, and He has come out of His human glory, and He has come out of His heavenly glory. और परमेश्वर ने अपने जो स्वर्गीय जो महिमा है उसको छोड़ के वो हमारी इस पृथ्वी में हमारे लिए You वो know, the आए। Bible is saying you cannot see God and live. और लिखा है कि तुम केवल You cannot see God and live. एंड कि इसमें लिखा है कि तुमने परमेश्वर को देखा और तुम जीवित या तो तुम जीवोगे। When you see face to face, you will fall dead. और लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर को चेहरे से चेहरे देखोगे तुम मर जाओगे वहां That पे। is the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा है। But there God came to us. लेकिन वही परमेश्वर हमारे बीच में आए। You know how He came? आपको पता है कैसे? And His glory was veiled in the human flesh. और उसका जो महिमा था जो एक सांसारिक रूप में उसने ले लिया, And He came as a man just like us, और एक पुरुष जैसे हमारे जीवन में जैसे हम जैसे हैं, so that we can know Him just as we know each one of us. और जैसे ताकि वो हमें जाने और हम उनको जान, जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। God in human form. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है जो हमारे रूप में आया, He is God man. और परमेश्वर एक इंसान बने। We know Jesus, we know the Father. और हम जानते यीशु मसीह को, हम जानते पिता को। So the saying that His love can never be separated from us. और इसीलिए कहा कि उनका जो प्रेम है हमें किसी भी चीज से अलग नहीं कर सकता। So the thing is that we need to experience His love on a daily basis. और मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु के उस प्रेम को हमें प्रतिदिन हमारे जीवन में अनुभव करना है। Yeah. So then another thing is saying, in this love God was manifested to us, that God has sent His only begotten Son into the world. That's verse 9. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only Son, only begotten Son into the world, that we might live through Him. Verse 9. 1 John chapter 4 verse 9. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। And verse 10 is saying, in this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। The word propitiation is very important. और ये जो प्रायश्चित है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक शब्द है। You know, every human being, everyone are sinful people. हम सभी लोग जो है वो एक पापी लोग हैं। We are sinners. हम सभी लोग ने पाप किया। And there's a wrath of God is upon the sinners. और जो परमेश्वर का जो कोप है वो हम सभी पापियों के ऊपर था। At the same time, God loves us. लेकिन उसी वक्त परमेश्वर हमसे प्रेम भी करते हैं। And God sending His Son Jesus Christ from heaven. और फिर यीशु मसीह को परमेश्वर अपने के इकलौते पुत्र को स्वर्ग से भेजा। What has He done for the wrath of God that's there against us? और परमेश्वर जो क्या किया गया था जब परमेश्वर का जो प्रकोप हमारे ऊपर जब था, And Jesus has offered Himself as a sacrifice for our sins. और फिर यीशु मसीह ने अपने आप को खुद का बलिदान दे दिया हमारे लिए। So it is for the appeasement of the wrath of God. और ये जो था परमेश्वर के जो प्रकोप को शांत करने के लिए एक शांतिपूर्वक एक योजना थी, So that the mercy of God will flow into us. ताकि प्रभु की जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर बहता रहे, And then we are accepted as His children. और ताकि हम उनके बच्चे होने के नाते हमारा जो है वो उनको वो एक्सेप्ट कर लें। Why did He do that? तो उन्होंने ऐसे क्यों किया? Because He loved us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करते Because हैं। the love is action. क्योंकि जो प्रेम है वही एक्शन है। Love is action. It's not just by saying lip service. It is action. और जो प्रेम जो है केवल ऐसे रहना नहीं है, लेकिन वो दर्शाना है। So in His love, He came to us, और प्रेम के द्वारा वो हमारे पास आए, and then He paid Himself a sacrifice on the cross, और फिर उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया कलवरी क्रूस में, so that we can have connection with Him. ताकि हम परमेश्वर के साथ वापस हम जुड़ जाएं। That the Father's love will restore the family, restore us into the family. और ताकि पिता के उस प्रेम से हम उस परिवार में वापस जुड़ जाएं। That's exactly what the prodigal son is.
और उड़ा पुत्र का कहानी यही तो था। And he was a sinner. When he came back, he was restored back into his family. हालांकि वो पापी था, लेकिन जैसे ही परिवार में वापस आ गया, वो परिवार से जुड़ गया। But the elder one who was there with him, the father, and he was trying to earn father's love by doing activities. और उसका एक बड़ा भाई था जो पिता के साथ रहता था, वो अच्छे काम कर रहा था ताकि जो पिता को हमेशा खुश रख सके। But we find that in the story when we read that he was standing outside the house. और फिर हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि जो बड़ा जो बेटा था वो घर के बाहर ही खड़ा था। The prodigal son who came back and he was taken into the house. और उड़ा पुत्र जो था वो घर के अंदर उसका स्वागत किया गया। The father went out and invited the elder one. He did not come. और फिर लेकिन जो पिता था, जो बड़े बेटे को उसने बोला कि तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वो आया नहीं। He stood outside by his choice. और क्योंकि वो अपने ही निर्णय से बाहर खड़ा था। But the younger one came with a repentant heart. लेकिन जो छोटा बेटा था, प्रायश्चित दिल से, हृदय से वो आया था। Who understood, who had the revelation of the love of his father. और क्योंकि इस बात को प्रकाशित हो गया था कि उसके पिता का प्रेम उसके लिए क्या है। So the love of the father we are talking about, when we understand that, that will take us confidently to his presence in any situation. और फिर जब पिता के इस प्रेम को अगर हम जान लेंगे, समझ लेंगे, हर एक हमारे जो सिचुएशन है, हम कॉन्फिडेंटली खड़े रह सकते हैं। Okay. So now the next verse is saying, verse 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। If God has loved us, He has also shown us that in our relationship, that's exactly what we have to do. अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी हमारे रिश्तों में ऐसा ही करना है। We love one another not with eros love, not with phileo love, not with storge love, but with agape love. This love, God's love. और परमेश्वर के उस प्रेम से हमें केवल इरोस लव से नहीं, फिलायो लव से नहीं, स्टोरोर लव से नहीं करना, लेकिन हमें अगापे प्रेम से करना है। You see, that is one of the reasons why God said in the creation, it is not good for man to be alone. और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी रचना में ऐसे कहा है कि पुरुष को अकेला रहना सही नहीं है। What is it? If we have to enjoy the fullness of our life, then the love, agape love, is the main core thing in that relationship. अगर हमारे जीवन में, हमें अपने जीवन में अगर हमको अच्छा रहना, खुश रहना है, तो उस अगापे प्रेम को समझना जरूरी है। That agape love is always placed on someone else. और क्योंकि अगापे जो प्रेम है किसी और के ऊपर हमेशा रहता है। So God said it's not good for man to be alone. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पुरुष को अकेला रहना सही नहीं है। Because he cannot express or he cannot love another person because he's alone. क्योंकि वो दर्शा नहीं सकता अपना प्रेम, या तो शांतिपूर्ण नहीं रह सकता जैसे वो उसको होना चाहिए। And then God made Eve and then brought her to Adam. और इसीलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया और आदम के जीवन में उसको लेके आए। And conducted the first marriage. और जो पहला जो शुभ विवाह जो था परमेश्वर ने उनका करवाया। And then he said in verse 24 of Genesis, verse 2, Genesis chapter 20, Genesis 2, verse 24. In that is saying, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. और उत्पत्ति के दूसरा अध्याय 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। The expression of our agape love is within the family. और जो अगापे लव का जो प्रभाव है या तो उसको एक्सप्रेशन है वो हमारे परिवार में है। So within the family there is a husband and wife. और उस परिवार में पति और पत्नी है। The man has been asked to love his wife. और इसीलिए पति को कहा कि अपने पत्नी से प्रेम करो तुम। So what is that love? Agape, not eros, not phileo, not storge, but agape love. और ये जो है इरोस नहीं है, फिलायो लव नहीं है, स्टोर्गे नहीं है, लेकिन ये अगापे प्रेम है। Which means that giving 100%, expectation 0%. और इसका ये मतलब है आपको 100% आपको देना है, लेकिन 0% आपसे कुछ आप उम्मीद रखना है उनसे। Just as God said it. और ऐसे ही उन्होंने कहा। So when you come to the marriage, because all the time when Jesus is saying something, it is always for our practical living. और जब कभी भी यीशु मसीह ने हमारे जो भी बात किए हैं वो हमारे दिनचर्या के बारे में है। So when it comes to the marriage, there are two things involved. और जब शादी के बारे में आते दो बातें इसमें गहराई में जाते हैं इस बात को। So one is the structure of the relationship. और दूसरा जो पहला जो बात है, जो एक
जो हमारे जो रिश्ता है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। And the second one is the roles and responsibilities of each one of them. और दूसरा जो बात है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है उस प्रेम में। So I want to say the structure of the relationship और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें जो स्ट्रक्चर जो हमारा रिलेशनशिप को सबसे महत्वपूर्ण है, is found in 1 Corinthians chapter 11 verse 3. और पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसका 3रा वचन में लिखा है, It says that, but I want you to know that the head of every man is Christ. The head of every woman is man. And the head of Christ is God. सो मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। So this is the structure. और ये एक स्ट्रक्चर है। If the structure is weak, then the building collapses. अगर ये जो नींव है, ये स्ट्रक्चर अगर कमजोर है तो गिर जाएगा। So what is important is to strengthen the structure. और क्या महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक बल देना इस स्ट्रक्चर में। Now look at this structure. So the wife, her head is the husband, आप सोचिए कि पत्नी का जो सिर है वो उसका पति है, and husband's head is Christ, और जो पति का जो सिर जो है वो यीशु मसीह है, and Christ's head is God the Father. और यीशु मसीह का जो सिर है वो है परमपिता। Now God the Father and God the Son, they are co-equal. They are equal in substance and they are co-eternal. और आप देखेंगे पिता और पुत्र एक ही है, वो अनंत काल के लिए वो एक ही हैं। They are absolutely one. और वो मैं बोलना चाहता हूँ वो एक ही हैं। If there's anything less, then they cannot be one. अगर उनमें से एक भी कुछ भी किसी में कमी है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। Because we have one God. बिकॉज हमारा एक ही परमेश्वर है। And three persons, one form, one God existed in three persons. और एक ही परमेश्वर लेकिन तीन लोगों में वो हैं। So all three are equal. और वो तीनों एक समान हैं। So I understand this way. It may not be the right one. 1 into 1 is equal to 1. और अगर मैं बोलूंगा एक गुना वो एक ही है होना चाहिए। In any one of the 1 is less than 1 by 0.000, that's so much, then it cannot become 1. और अगर एक गिना में अगर 001 भी अगर माइक्रोन्स पे कम हो जाता है वो एक नहीं हो सकता। So Jesus the Son and God the Father, even though they are absolutely equal, हालांकि पिता और यीशु मसीह एक ही समान हैं, but functionally लेकिन काम करने का जो तरीका है उनका, Jesus the Son submitted to the Father. और यीशु मसीह अपने आप को अधीन रखे हैं परम पिता के पास। So likewise the husband will be submitting to Christ. और वैसे जो पति है वो यीशु मसीह के अंदर अधीन में रहेंगे। Now the wife, husband, Christ, God. और पत्नी, पति, यीशु मसीह और परम पिता। Now Jesus Christ has shown the Father's love to us. और यीशु मसीह ने परम पिता का उस प्रेम को हमें दर्शाया, दिखाया। And when it comes to the structure, Jesus Christ has shown the Father's love to the husband. और अब देखेंगे स्ट्रक्चर को कि परम पिता का जो परमेश्वर का जो प्रेम है यीशु मसीह के द्वारा हमें दिखाया गया। And the husband has to show God's love, the agape love to the wife. और जो पति का जो काम है कि परमेश्वर के उस अगापे प्रेम को पत्नी को दर्शाना है। That is why he is saying the husbands love your wife. और इसीलिए कहा गया कि पति अपने पत्नी से प्रेम करो। Husbands love you, agape love your wife. कि पति अगापे जो प्रेम है अपने पत्नी से करना, irrespective of who she is, 100% giving in love and 0% expectation. उससे कोई मतलब नहीं रखते कि वो कैसे हैं, लेकिन 100% प्रेम उनसे करना है और जो 0% है जो है आपको उसमें लेना भी, ऐसा सोचना भी नहीं है। You become Christ to your wife. और आप मसीह बन जाते हैं अपने पत्नी के लिए। So it is a very great high responsibility. और एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है ये। Okay? So that is why we need Christ all the time. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत हमें हमेशा पड़ता है। Today pastor was saying if Jesus is there in the boat and he will make everything life beautiful. और जैसे पास्टर जैक्सन ने कहा कि जब यीशु मसीह हमारे नाव में है तो हमारे जीवन का हर चीज खूबसूरत हो जाएगा। In my life I have learned something. और मेरे जीवन में मैंने एक चीज सीखा है। When I come across with the difficult people and difficult situations, और जब भी मैं कुछ
मुश्किल लोगों के साथ या मुश्किल समय में जब मैं आता हूं I bring Christ in between. और मैं प्रभु यीशु मसीह को उसके मध्य में लेके आता The हूं problem gets solved. और वो जो समस्या है उसका मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है The difficult person has not changed. और जो मुश्किल जो व्यक्ति है वो बदला नहीं The difficult situation has not gone. और जो मुश्किल जो समय था वो नहीं बदला But I changed. लेकिन मैं बदला I changed to respond to that person and to that situation. और ताकि मेरे अंदर एक बदलाव है ताकि उस सिचुएशन को और उस समस्या को कैसे देखना है वो मैं समझ गया You know, so Christ is very important to us. और इसीलिए मसीह जो है सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है You know, when God said that husbands love your wife, और जैसे मसीह परमेश्वर ने कहा कि पति से कि अपने पत्नी से प्रेम करो because He knows that man can do it. और क्योंकि वो जानते थे कि पति कर सकता है He will not do something that he cannot do it. और वो ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जो पति नहीं कर सकते Because man is normally a hunter and he is, he want to go and conquer. और अब देखा जाएगा तो जो पति है वो एक शिकारी है और वो कहीं ना कहीं जाके वो जीत लेगा Okay? And we must conquer. और हमें भी जीतना है So I want to say to all the married men, और मैं सभी जो पुरुष और स्त्रियों से मैं कहना चाहता हूं a man एक पुरुष be man enough और वो एक पुरुष जैसे ही होना चाहिए to love his wife with agape love. और अपने पत्नी को अगापे के उस प्रेम से प्रेम करने The के लिए situations will change. और जो समस्या जो सिचुएशन वो बदल जाएगी Any difficult person will change. और हर एक जो एक मुश्किल व्यक्ति वो भी बदल जाएगा I have come across a young family in the church. और मैंने एक संपर्क में आया जो एक नौजवान एक परिवार है So I know them from the childhood only. और मैं उनके बचपन से मैं उनको जानता हूँ So I know that they can open up their life to me and they can tell the truth. और मैं जानता हूँ कि वो अपने जिंदगी को मेरे सामने खोलेंगे और वो सच्चाई बयान करेंगे Marriage happened a year later. और शादी 1 साल के बाद हुआ I met the man और मैं उस पुरुष से मिला मैं and having a heart-to-heart talk. और हृदय से हृदय वाली ऐसे बात हम लोगों ने की He never said any negative about his wife at any point of time. और बातों में उसने कभी भी अपने पत्नी के बारे में बुराई नहीं किया Never said anything. और एक बार भी नहीं किया So we have no idea that what is going on there in their life. और लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनके जीवन में हो क्या रहा है फिर But one time while talking, और जब मैं बात कर रहा था एक दिन and he said, और उसने कहा for me, marriage is hell. और उसने कहा कि मेरे लिए शादी जो है एक नरक के समान है When he said that statement, और जब उसने इस बात को उसने मुझसे कहा उनसे it कहा meant a lot to me. I understood a lot of things और फिर मुझे समझ में आया बहुत सारी बातें because it will be in his desperation, in his helplessness, he said that word. और क्योंकि वो बहुत ही तनाव में था और वो कुछ नहीं कर सकता उस वक्त उसने इस बात को कही थी Nothing more he said. और उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा Just about 3 years later, we met. 3 or 4 years later, met again. और करीबन 3 और 4 साल बाद हम लोग वापस मिले This time, his wife is saying, और इस टाइम इनकी पत्नी ये कह रही थी "I have never seen a man so disciplined." और कहा कि मैंने कभी एक ऐसा इंसान को नहीं देखा जो इतना अनुशासन में रहता है I never seen a man loving God so literally, according to the word. और फिर कहा कि मैंने कभी एक ऐसे इंसान को नहीं देखा जो अपने परमेश्वर से इतना प्रेम करता है And she began saying so good things about the man. और ये जो स्त्री थी वो अपने पति के बारे में इतनी अच्छा के बारे में बोल रही थी Whole thing changed. और सब जो पुराने जो बातें थी वो बदल गई I know about 3-4 years ago what was the condition then. और मैं जानता था कि 3-4 साल पहले उनके जीवन में क्या हो रहा था This man, I know that he loves the Lord, loves the Lord. और क्योंकि मैं ये जानता था कि ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम करता था He went through the scriptures all about what is about marriage, और- what is the family all about. और फिर वो ढूंढने लगा पवित्र शास्त्र में कि ये जो शादी है वो है क्या ये He actually began literally going through the scriptures and obeying the word and loving his wife. He's saying that loving the wife is a ministry God has given to me. और फिर जैसे उसने पवित्र शास्त्र में हर वचनों को ढूंढने लगा और ये बात को समझ गया कि परमेश्वर ने उससे कहा कि पत्नी से प्रेम करना वो ही उसकी एक मिनिस्ट्री भी है You know, when we love our wife, actually, जब हम अपने पत्नी से हम प्रेम करते हैं जब and God is there in the midst, और परमेश्वर हमारे उस मध्य में रहता है because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है Okay? So
He's saying that whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But the one who believes that Jesus Christ, the Son of God. That is on 1 John chapter 5, verse 4 and 5. 1 John chapter 4, Verse 4 and 5. 4 and 5. So, brothers and sisters, I just this particular thing to say that God loves each one of us. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभियों से प्रेम करते हैं, Even when we do wrong things, हालांकि जब हम गलत भी करते हैं, and His love will be pursuing us और वो हम उनका जो प्रेम है हमारे इधर हमेशा मंडराता रहता है, because He loves us. He will never leave us. और वो हमसे प्रेम करते, वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। And the same God is available to us in order to love our spouses. और वही परमेश्वर हमें बल देता है कि हम अपने दंपति से कैसे प्रेम करें। Because in a family, this is the core of the relationship. और एक परिवार में सबसे एक निष्ठ बात यही है कि हम प्रेम कैसे करें, So from that core comes your children. और यही नींव के द्वारा वो जो है जो बच्चों में आता So है। you build up your family in agape love of Christ. और आप आपको आपके परिवार को अगापे उस प्रेम में आपको तैयार करना है। Spend your whole life of yours in order to, build your family in the agape love of God. और आप अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में एक ही बात को याद रखना कि आपके जीवन को अगापे उस प्रेम से आपको रचना है और उसी में चलते रहना है। You will enjoy the goodness of God. और फिर आपको मजा आएगा परमेश्वर के उस भलाई के अंदर। I am saying this to all the married people. और मैं ये सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, I am also saying to the people who are eligible to be married. और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो एलिजिबल है, जो शादी करने जा रहे हैं। Jesus Christ has got a design for the marriage. और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है शादी को एक डिजाइन दे के रखा हुआ है, He is actually the love, true love. क्योंकि यीशु मसीह केवल एक सच्चा प्रेम है, He demonstrated His love क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रेम है वो दर्शाया in the person of Jesus Christ. और हमारे मध्य में इस बात को दिया उन्होंने। Okay. Now, what are the benefits that we will get it? और इससे हमें प्राप्त क्या होने वाला है? So we will be able to see God through the love. और फिर हम परमेश्वर को देखेंगे उस प्रेम के द्वारा। See, 1 John chapter 4 verse 12 says, "No one has seen God at any time." और पहला योना का 14 अध्याय उसका 12वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। If we love one another, God abides in us, अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, and His love has perfected in us. और उनका जो प्रेम है जो हमारे अंदर सिद्ध हुआ है। The main place, the persons whom we are actually fully expressing our love in an intimate way is a husband-wife relationship. और एक जो प्रेम जो है जो दर्शा सकते वो ये पति और पत्नी के प्रेम के बीच में है। As we are deliberately loving, और जैसे हम लोग जानबूझकर प्रेम करते हैं, and His love will be perfecting our life. और फिर परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे जीवन में वो सिद्ध हो जाता है, Because God is love and He is there with us at that time. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो हमारे साथ है। And 1 John chapter 4 verse 17 says, "Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world." और इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। The commandment is to love one another with that love. और आज्ञा पालन ये है जो हमें करना है कि जो उसके प्रेम के द्वारा हमें भी प्रेम करना When है। we do that, we have the boldness even to stand before God at the time of judgment. जब हम करते हैं तो न्याय के उस समय में हम प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं। So in conclusion, God's love is powerful weapon against any kind of hostility. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो प्रेम है एक मजबूत हथियार है जो हमारे जीवन में जो उसको जूझने के लिए। So we establish our family, our church family in the agape love. और हमने जो परमेश्वर के इस अगापे प्रेम में हमारे इस कलीसिया के इस परिवार को एस्टैब्लिश किया, This is the reality of our life. और ये सच्चाई हमारे जीवन का, And you will enjoy the goodness of God. और यही फिर हम परमेश्वर की उस भलाई को हम लोग जानेंगे। Who doesn't like love? और कौन नहीं चाहता प्रेम को? It is a goodness. Even the world will see when we express our agape love, the world will know that we belong to Jesus, because nobody else can give that kind of life. और ये दुनिया भी देखेगी जब हम जिस प्रेम से, जिस अगापे प्रेम से हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये दुनिया भी देखेंगे ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। May the Lord bless you.
परमेश्वर आपको आशीष दे। Let me just pray for the church, right? मैं कलीसिया के लिए आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, we want to thank you. स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ Thank you for your word. आपके इस वचन के लिए Thank you, Lord, for your unfailing love, और आपके अटूट इस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद your करता हूँ, agape love. आपके इस अगापे प्रेम के लिए। Father, we pray that your love will be there in each one of us, particularly in our individual family and then together in our church, Lord. प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका ये जो प्रेम है हमारे जीवन में और हमारे इस कलीसिया में होगी। It is so comforting to know that even when we do wrong, you still love us. प्रभु इस बात को जान के हमें अच्छा लगता है कि प्रभु हम जब गलत भी हैं फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं, Because your nature is love. क्योंकि आपका स्वभाव जो है वो प्रेम है। Lord, we pray that that nature will come to us when we believe in you, Lord. प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो स्वभाव जो आपका वो हमारे अंदर है जब हम जैसे प्रेम करते हैं। We pray for every family, मैं हर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, every married couple. हर एक जो दंपति के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, we pray that your divine presence will come into them. प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी एक उपस्थिति उनके जीवन में आ जाए। Strengthen them, Lord. प्रभु तू उनको बल देना। We also pray for those who are eligible to be married. प्रभु जो लोग तैयार है शादी के लिए मैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Lord, we pray that you will release the godly marriages into them. प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी तरफ से जो शादी आएगी प्रभु उनको वो अपने जीवन में ले लें। They will build up the home in the agape love of God. प्रभु अपने वो घर को तैयार करेंगे प्रभु आपके अगापे इस प्रेम में। We pray this in Jesus' name. मैं ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Amen. आमीन Amen. आमीन।